Good evening, class. In last video, we have discussed so many features of management of natural resources of class 10th. And in this topic, we have started the first of all the basic and special components of natural resources, and we have discussed very beautifully in schools. And now some of the parts we have also discussed in online classes, and this is your third phase of natural resources. Okay, so first we are going to discuss some more properties of natural resources, because in this system we have discussed the natural resources, what is the natural resources, how natural resources are generally classified, and how many types of general resources are found in our environment, and which resources play a very important role. Okay, so बहुत सारी चीजें हमने देखा natural resources में, but today we are going to touch a final topic of the natural resources and management, and this is your last chapter of class 10th, and it is also a last chapter of biology portions. After that your biology portion will be totally complete. Okay, so apart from that we are going to discuss some more properties of biological. So here in previous we have discussed so many features which are generally related to dams, related to plants, related to forests. So many features we have discussed, but in this chapter there is only two topics. The first is forest system and second is dam system. ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे हमारे एक आंदोलन से थे हमारे बुक में। जनरली बहुत सारे ऐसे राइट्स वगैरह दिए हुए हैं, जनरली चिपको मूवमेंट है, केजराली मूवमेंट्स है, ठीक है, और मैसाकेयर वगैरह बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हमारे बुक में है विच इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, जिसमें पूरे के पूरे जो थे वो फॉरेस्ट को ही सेव करने के लिए अपना प्रोसेस जो आगे किए थे। ठीक है, सो देयर इज अ टू मच टाइप्स ऑफ variations are generally given in our NCERT textbook, and we have already discussed the different types of forest resources, and by the help of forest resources how many organisms and how many types of industries and stakeholders are generally gets benefited by the forest products. Okay, so we have discussed lots of things, but today we are going to discuss the important part of dams. Okay, so what we know about the dams, dams के बारे में जनरली हम क्या जानते हैं? So dam means it is the conserving of water for the purpose of different things like irrigation in the field, like watering in the different types of villages and very big cities. बहुत सारे ऐसे एरिया में डैम्स का यूज होता है, बट मोस्टली डैम्स आर जनरली यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पस इन एग्रीकल्चर फील्ड। लेकिन अगर सबसे ज्यादा डैम्स की बात करते हैं तो जो डैम्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए होता है, और जैसे जगह पे जहाँ पे जनरली ड्रॉट के कंडीशंस होते हैं, जहाँ पे सूखा पड़ता है, दैट टाइम generally most of the governments and NGOs are generally release the water from clearing whole the damaged part। उनके पूरे के पूरे जो सूखा पड़ा है या जो भी है उनको क्लियर करने के लिए वो फिर इस डैम को ओपन करते हैं। सो इन द डैम जनरली जहाँ पे स्टेब्लिश होते हैं, जहाँ पे डैम को स्टेबल किया जाता है, दे हैव लॉट्स ऑफ फीचर्स एंड कंबाइनिंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इनके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, बट देयर इज अ मेनी मोर एडवांटेज, एडवांटेज भी ज़्यादा है और डिसएडवांटेज भी ज़्यादा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवर इंडिया इज टोटली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड, एंड इट मीन्स दैट इन आवर इंडिया देर इज अ लॉट्स ऑफ फार्मर्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर। हमारे इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं वो पूरे के पूरे वाटर के ऊपर डिपेंड है। बाय इफ दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर वाटर, इट मीन्स द एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल। सो depending upon the dams, firstly in our India there is a enormous type of dams are generally there, and several dams are generally situated in different types of state। जैसे भाखरा नागर डैम है, सरदार डैम है, सरदार है ना, बहुत सारे ऐसे डैम्स जो हैं अलग अलग जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डैम्स। डैम्स के एडवांटेज क्या क्या है? इफ सपोज एनी स्टेट और एनी विलेज और एनी डिस्ट्रिक्ट combine the dams, so in a state and country and villagers how generally they use the dams water, तो वो अपना जो डैम का जो वाटर है वो किस पर्पस में यूज करते हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ डैम्स। सबसे पहले जो डैम्स के एडवांटेज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इंश्योर्स एडिक्वेट वाटर फॉर इरिगेशन। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं इन अवर इंडिया, मोस्टली 60 to 70% पर्सन्स आर जनरली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, एग्रीकल्चर के ऊपर टोटली वो बेस्ड है। सो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर जनरली
very applicable to ensures to adequate water for irrigation and they are generally getting from the dams. यानी इंडिया में जितने भी किसान हैं वो पूरे के पूरे वाटर के ऊपर डिपेंड हैं, क्योंकि अगर वाटर नहीं मिलेगा इट मीन्स देयर फील्ड विल नॉट बी इरिगेटेड, इट मीन्स दैट क्रॉप विल नॉट बी जर्मिनेट। ठीक है, सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए for the purpose of irrigation water is very important and this water generally takes in a large amount। और ये जो पानी है उन्हें 1 लीटर या 2 लीटर की जरूरत नहीं होती है, they generally require a very large amount of water and generally large amount of water में generally it is occupies from the dams। वो कहाँ से occupy करते हैं, dam से occupy करते हैं। ठीक है, so that is the most important function of dams। Second, generate electricity, as we know that in our India the electricity producers also and there is a different setups are generally published in the river and many more very big countries। So generation of electricity is a very important task and many more countries like China, Africa and India also get participated to generate electricity in a hydroelectricity form। So generally electricities are generally also produced by the help of dam system, because when the dam's water are generally flows from upper portion to lower portion, that time the high speed waves are generally created and by this it creates the electricity। Okay, so dam also play an important role to generate electricity। Second, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, इट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर इन रीजन्स। ठीक है, ये क्या करता है, ऐसे रीजन्स जहां पे पीने के लिए साफ पानी वगैरह नहीं होते हैं, दैट टाइम मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर unaware to get the purify water and most of the time they generally use a contaminated water। ऐसे बहुत सारे किसान और बहुत सारे जो विलेजर्स के लोग होते हैं वो बहुत सारे पानियों के वैरायटीज के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, जिस कारण से वो बहुत सारे कंटामिनेटेड वाटर को जनरली यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। दैट टाइम द प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर इरिगेशन इज आल्सो डन इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स। और जनरली डैम में भी पानी वैसे ही होता है, बट डैम का पानी रिलीज करने से पहले भी कुछ ऐसे प्यूरिफायर, कुछ ऐसे बायोटैंक वगैरह लगे रहते हैं जिससे फर्स्टली दे हैव टू क्लियर और दे हैव टू प्यूरिफाई द वाटर, देन दे हैव टू रिलीज, तब जाके वो उसे रिलीज करते हैं। सो दीज आर द थ्री most advantage of dams which we have discussed already। Now we are going to discuss some more disadvantage of dams। मैंने बताया था every task has a benefit point and negative point also। तो dams के भी benefit points हैं और negative points दोनों हैं। So what is the negative point? इनका negative point क्या है? No equitable distribution of dams। dams की बात करें, there is a not a proper systems which are generally required for प्रिपरेशन, प्रोडक्शन एंड मेनी मोर थिंग्स इन अ डैम्स। डैम्स के लिए कोई भी इक्विटेबल का मतलब होता है इक्वल फॉर्म में। सो डैम का जो भी वाटर होता है वो कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता, वो काफी दूर तक फैला होता है और उसमें जो लेवल है ड्यू टू द रेनिंग उनकी लेवल रोज बढ़ते जाती है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फर्स्टली वो इक्विटेबल नहीं होता। इक्विटेबल मीन्स इक्वल फॉर्म में नहीं होता, ये कभी ज्यादा भी हो जाते हैं एंड कभी इवेपोरेशन के कारण कम भी हो जाते हैं। ज्यादा होगा तो फ्लड होगा और कम हो जाएगा तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है डैम्स के नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट इट कॉजेस डिफॉरेस्टेशन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजरस टास्क है, ये डिफॉरेस्टेशन को कॉजेस करते हैं, मींस अपरूटिंग ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों को हटाना। और पेड़ों को हटाने का सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं डैम्स, बिकॉज जहां पे डैम्स स्टैब्लिश होगा वहां पे कोई भी प्लांटेशन नहीं होगा एक्वेटिक प्लांट्स को छोड़कर। इसका मतलब बड़े से बड़े पेड़ों को भी वहां से हटाना पड़ेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड लॉसेस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यहाँ पे जो फॉरेस्टेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, वेदर इट इज स्नैक, वेदर इट इज लॉयंस, बफेलो, जो भी हैं, जो भी आपके फॉरेस्ट सिस्टम में सर्वाइव करते हैं, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स। नेक्स्ट, इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी। इसमें बहुत सारे डैम्स को बनाने में जनरली द एनजीओज एंड गवर्नमेंट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बट दे फॉरगेट टू गिविंग प्रॉपर बेनिफिट टू द पब्लिक। लेकिन पब्लिक से लेने के बाद पैसे ये सारे डैम्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट करती है, लेकिन उनको बेनिफिट इसके बदले में उनको ज्यादा नहीं मिल पाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डैम्स। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट द वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग वी हैव स्टडीड इन सो मेनी टाइम्स इन 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, ऑल्सो ईवीएस बुक। ओके, ईवीएस की बुक में हमने वाटर हार्वेस्टिंग को देखा है, बिकॉज
when the rain is falling from the sky, that time we have to store the water by using a slanting roof. हम अपने घरों के रूप को स्लैंटिंग बना सकते हैं, क्योंकि स्लैंटिंग बनने के कारण जो भी वाटर होगा वो स्लैंट होकर एक पाइप में स्टोर होगा, और स्टोर हुए पानी को हम एक नीचे की तरफ एक टैंक बना के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। और जो हमारा स्टोर किया हुआ वाटर रहेगा, उस स्टोर किए हुए वाटर को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस, फॉर मोस्टली अगर जो जानवर वगैरह हैं उनके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी प्योरीफाई होते हैं। और अगर एसिड रेन उनके साथ कंबाइन ना हो तो, ठीक है, जैसे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस हैं, अगर उस वाटर के साथ कंटामिनेट नहीं हो तो फर्स्टली वी हैव टू चेक द वाटर, उनका वाटर लेवल, पीएच वैल्यू वगैरह सब चेक करके। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स देयर इज अ कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो रेनिंग वाटर्स होते हैं, जो ऊपर से जो पानी गिर रहे हैं, जनरली उसको कलेक्ट कर लेना अपने फ्यूचर यूज के लिए फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, प्लांटेशन और भी जो भी सारी चीजें होती हैं, दैट ऑल ओवर द प्रोसेस कॉल्ड इरिगेशन। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इरिगेशन का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में मोस्टली वी हैव टू पुट फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर एंड ऑल्सो दी रेन वाटर ऑल्सो, बहुत सारे वाटर्स का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर उनको फ्रेश वाटर दिया जाएगा पीने वाला तो ड्रिंकिंग की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, तो उस टाइम पे उसका शॉर्टेज हो सकता है। सो इरिगेशन वाटर के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट रेन वाटर का यूज करते हैं, एंड रेन वाटर हमें बहुत ही प्लेंटी मैनर में मिल जाते हैं, ठीक है। सो वाटर हार्वेस्टिंग की सबसे इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं, सो इट डज नॉट इवोपरेट, क्योंकि रेन वाटर अगर ऊपर से गिर रहा है तो ये एक स्लोप में घर से होते हुए, क्योंकि इसकी स्लोपिंग ऐसी है किसी के घर की, तो ये स्लोपिंग से होते हुए ये एक आपके जनरली इवोपरेट हो जाएंगे, आपका जो लैंड है वहां पे इवोपरेट हो जाएगा, और इवोपरेट होने के बाद ये अंडरग्राउंड वाटर बन जाते हैं, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जो लेवल है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। अंडरग्राउंड होने से फायदा ये होता है कि जब भी, जैसे आपके बुक्स में दिया है खाद्यान्न सिस्टम, खाद्यान्न सिस्टम में जनरली यहाँ पे पेड़ बने हुए हैं, ठीक है, वाटर गिर रहा है, ये एरिया है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे एक सपोर्टर है, उसके बाद एक यहाँ पे नदी टाइप का बना है, इसको खाद्यान्न सिस्टम कहते हैं, और यहाँ से जो है इवोपरेट होते हैं। सपोज वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम देयर, पानी जो ऊपर से गिर रहा है यहाँ से आया, और ये इवोपरेट होते होते यहाँ पे एक वॉल लगा रहता है जहां से पानी रुकता है, रुकने के बाद इवोपरेट होते हैं, ठीक है, ये पानी अंदर की तरफ इवोपरेट होते हैं, और यहाँ का जो ग्राउंड लेवल होता है, क्योंकि पानी वापस रिवर में ना मिल पाए इसलिए यहाँ पे एक सपोर्टिंग वॉल बनाया जाता है, ताकि पानी आगे की तरफ फॉरवर्ड ना हो, पानी वहीं पर रुक जाए, और फिर वहाँ पे स्पोर टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स के कारण वाटर जो है इवोपरेट होकर ग्राउंड लेवल में आ जाता है, ठीक है। सो ग्राउंड लेवल में आने के बाद इनकी सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि वाटर जो होता है हमारे ग्राउंड लेवल में रिचार्ज होते रहते हैं, मतलब इंक्रीज होते रहते हैं, तो इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि हमारे वाटर का जो लेवल है ग्राउंड में वो इवोपरेट नहीं होता, क्योंकि सन की जो रेडिएशंस होता है वो जनरली हमारे अर्थ के ऊपर सरफेस पे अटैक करते हैं, सन के रेस को अंदर जाने के लिए काफी समय लगता है, जब अर्थ हमारा हीट होगा तब जाके अंदर का पानी इवोपरेट होकर ऊपर की तरफ जाएगा। सो इसमें इवोपरेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द मॉइस्चर फ्रॉम वेजिटेशन ओवर अ वाइड एरिया। ये क्या करता है, ड्यू टू द इवोपरेशन इन अंडरग्राउंड वाटर, ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जो किसी भी वेजिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो हमारे सीड्स होते हैं जो डॉर्मेशी पीरियड में होते हैं, उनको भी खुलने के लिए एक मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, जिससे उनका प्रॉपर सीडलिंग्स और भी वगैरह ग्रोथ कर पाए, ठीक है। सो नेक्स्ट, इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग सिस्टम फॉर स्मॉल पैथोजेंस। क्या होता है, जनरली अगर पानी अर्थ के ऊपर स्टोर होने लगा काफी दिनों से, यहाँ पे ब्रीडिंग होने लगती है, ब्रीडिंग इन द सेंस ऑफ देयर इज अ जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेडिसाइड्स, कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे निकल जाएंगे, पेड़ पौधों के साथ बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, फंजाई, एल्गाई, ये सब कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जो इन्हीं के साथ अटैच होकर उस एरिया को पूरा कंटामिनेट करेंगे। सो कंटामिनेशन से देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिजीज आर जनरली कमिंग फ्रॉम दैट कंटामिनेटेड एरिया। तो उस कंटामिनेटेड एरिया से बहुत सारे ऐसे डस्ट के पार्टिकल्स और डस्ट, जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं, वो किसी ह्यूमन बींग्स में इंटर करेंगे एंड दे विल कॉजेस लॉट्स ऑफ डिजीज, और वो फिर बहुत सारी बीमारियों को कॉज करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो, इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग सिस्टम। लेकिन अगर पानी अंदर जा रहा है बाय यूजिंग द वाटर हार्वेस्टिंग, पानी अगर अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अंदर में ब्रीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्लोज होता है। जितने भी बैक्टीरिया, वायरस होंगे विच आर फाउंड इनसाइड द अर्थ, वो भी अर्थ के अंदर, तो वो बाहर निकलने में उनको काफी समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट,
इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशंस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट। अगर पानी अर्थ के नीचे लेवल में है, इट मींस देयर इज अ आल्सो स्टॉपिंग एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट, यानी जो भी एनिमल और ह्यूमंस के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं विच आर जनरली सिक्रेटेड फ्रॉम देयर बॉडी, इट डज नॉट हार्म टू द अंडरग्राउंड वाटर। ये अंडरग्राउंड वाटर को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए इवोपरेशन जो होता है अंडरग्राउंड वाटर में वो सबसे सक्सेसफुल होता है और किसी भी इरिगेशन पर्पस के लिए हम इसको वापस यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस फॉरेस्ट सिस्टम एंड डैम सिस्टम। ये सारे के सारे डैम्स और वाटर हार्वेस्टिंग और इससे रिलेटेड थे, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन 6th-7th क्लासेस। But next, coal and petroleum. What we know about the coal and petroleum? These are the fossil fuels, and these are present in our nature in a very little amount. And if we are using continuously, definitely they will कम टू एन एक्सटेंट। अगर हम इन्हें कोल एंड पेट्रोलियम दोनों फॉसिल्स फ्यूल्स हैं हमारे, दोनों हमारे अर्थ पे बहुत ही कम मतलब उसमें क्वांटिटी में है, ज़्यादा यूज़ करने पे इनकी कमी हो सकती है, और अगर इनको प्रिजर्व करके रखेंगे तो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो कोल एंड पेट्रोलियम इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज पेट्रोल एंड डैम्स। आपके सॉरी वाटर एंड डैम्स, आपके जो बुक में एनसीईआरटी के बुक में डैम्स और फॉरेस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट दिया गया है, जबकि कोल और पेट्रोलियम का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पेट्रोलियम को हम एज ए गोल्ड के उससे भी जानते हैं, वाई बिकॉज पेट्रोलियम सबसे इंपॉर्टेंट और काफी कॉस्टली होता है, एंड कोल भी वैसे इंपॉर्टेंट होता है। दोनों का इंपॉर्टेंट एज अ फ्यूल, दोनों का जो इंपॉर्टेंस है फ्यूल के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये फ्यूल हमें एक प्रकार की एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे आर जनरली गेटिंग फ्रॉम द बीनेथ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अर्थ, रॉक्स वगैरह से हम जनरली इनको फॉसिल फ्यूल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वुड यू प्रिफर टू कंजर्व एनर्जी? अगर आपको एनर्जी को कंजर्व करना है, सो व्हाट वुड यू प्रिफर? आप क्या प्रिफर करेंगे? सपोज इफ यू वांट टू गो टू योर स्कूल, अगर आप स्कूल जाना चाहते हैं, दैट टाइम यू हैव टू चूज योर बस और अ साइकिल। या तो आप बस का सहारा लेंगे, या तो बाइक का सहारा लेंगे, या तो साइकिल का सहारा लेंगे। अगर पास का डिस्टेंस है, डेफिनेटली यू कैन प्रिफर बाइसिकल, बिकॉज बाइसिकल डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, मीन्स buses कैन क्रिएट पॉल्यूशन एंड बाइक ऑल्सो क्रिएट्स पॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको बहुत सारी अगर थोड़ी सी चीज़ों की जरूरत पड़ रही है एनर्जी की, दैट टाइम यू हैव टू यूज ओनली वार्म ऑफ बाय द रेडिएशंस फ्रॉम सन, बिकॉज इट इज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर आपको ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने लगते हो अपने आप को गर्म करने के लिए। सो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। सो कंजर्व एनर्जी मीन्स यू हैव टू यूज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी टू रिड्यूस दी एनर्जी लेवल। अगर एनर्जी लेवल को आप बचा के रखोगे फॉर फ्यूचर जनरेशन, इट विल ऑल्सो बी अपग्रेडेड, बहुत अपग्रेडेड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट, overview of natural resources. Overview of natural resources means we have discussed so many things in this chapter. Now overview का मतलब होता है the sustainable development of natural resources. हम जो natural resources के बारे में डिस्कस करते हैं, so sustainable development का मतलब होता है it is a special type of methodology in which we have to study the different types of natural resources by using the methods to place different types of resources in which category, and we have to study which type of resources. ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से रिसोर्सेज किस मेथड में आएंगे, किस रिसोर्सेज का हम किस तरह की स्टडी कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि इस फैक्टर के तहत जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक मेथड होता है। ठीक है, उनके एक सिस्टम्स होते हैं, वो पूरे सिस्टम में ही रहकर काम करते हैं। ठीक है, so that is all about your last chapter of biological portion, and if you get any doubt you can contact me. Thank you students.